Good morning everyone. Welcome to this video. Today I am going to explain chapter 2. In this video I will explain the last part of chapter 2. The topic is the prevention of communicable disease. We'll learn how to prevent these communicable diseases. Always remember that prevention is always better than cure. किसी भी बीमारी के इलाज से बेटर है कि आप उसको प्रिवेंट करें, आप उसको होने ना दें. सो गुड हाइजीन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द डिजीज. द वर्ड हाइजीन इज यूज्ड फॉर प्रैक्टिस दैट इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ. हाइजीन क्या है? आपकी वो प्रैक्टिस जिसमें आप अपनी सफाई का, अपने आसपास की सफाई का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं. So we will learn about some measures to prevent communicable disease. Direct contact. We should avoid direct contact because whenever we are making direct contact with infected person, we are transmitting, we are getting so many germs by them. So disease can be prevented by avoiding direct contact with infected person. The things used by him. After the recovery of the person, all the things used by him should be disinfected properly. जो infected person है, उसने जो भी चीज़ों को यूज़ किया है during infection, उनको हमें properly disinfected करना चाहिए. Second is, whenever an infected person sneezing, coughing, he should use a mouth cover. Houses should be well ventilated with fresh air and sunlight because fresh air and sunlight removes germs from your house from the surface. Toilet, bathroom should regularly washed and cleaned with disinfectant. आपके घर में जो टॉयलेट होता है, वो बाथरूम है, वो सबसे ज़्यादा जर्म्स कैरिंग प्लेस है, तो आपको उन्हें प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से उन्हें वॉश करना चाहिए रेगुलरली. एज यू नो दैट हमारे किचन में कई बार कॉकरोचेस हो जाते हैं एंड फ्लाइज भी देखने को मिलती है. These flies and cockroaches are so dangerous for us. Protect your food from the contamination by these flies and cockroaches. Keep your kitchen clean and free from flies and cockroaches. Then you can prevent you from disease. Use always boiled water and purified water. Water should be boiled and filtered properly before use. You can see stagnant water. In stagnant water, flies can grow. They can breed very fastly. Insects like mosquito and flies should not be allowed to breed in and around the house. अपने आसपास आपको पानी कहीं पे जमा नहीं रहने देना है, जिससे कि जो फ्लाइज है वो ब्रीड ना कर सके. डू नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट योर सराउंडिंग. अगर आपके आसपास गार्बेज होगा तो आपके जो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जर्म्स हैं, वो ज़्यादा जर्म होंगे, आपके ग्रो होंगे. इंसेक्ट में ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर. जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टैग्नेंट वाटर इज अ मेजर कैरियर ऑफ दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट. Therefore, do not allow stagnant water to collect anywhere near or in house. Water tanks should be covered properly. आपके जो water tanks हैं, उन्हें भी cover होना चाहिए properly because उनमें भी आपके insect germinate कर सकते हैं. Spray insecticides in surrounding may help in killing mosquitoes. Mosquitoes को अगर आपको kill करना है तो insecticides को आपको spray करना चाहिए अपनी surrounding में. Student, one more method to protect you from disease, that is vaccination. Vaccination is a method of preventing germs
from causing disease even if they entered in your body. अगर आपके जर्म्स आपकी बॉडी में अगर एंटर हो भी गए हैं तो भी वैक्सीनेशन आपको हेल्प करती है कि उन जर्म्स को आप प्रिवेंट कर सकें. What is vaccine actually? A vaccine is a small amount of weakened or killed disease causing germs which are either swallowed or injected into body. After being injected, the body produces certain substances called antibodies that fight with disease causing germs. The substance remain in blood and guard the body against future attack from disease causing germs. Thus your body develops immunity against the particular disease. Student, let me explain in more detail वैक्सीन होती क्या है. वैक्सीन एक वो सब्सटेंस है आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द पैथोजन और जर्म्स, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ जाती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज. अब इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी में? एक जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ऐसे इम्यून सिस्टम भी होता है. जैसे ही कोई पैथोजन या फिर जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी और एंटीजन प्रोड्यूस करता है टू फाइट अगेंस्ट दोज जर्म्स. जो पर्टिकुलर जर्म आपकी बॉडी में आया है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं और उस जर्म्स को किल करते हैं. बट सारे जर्म्स को किल करें इतने स्ट्रॉन्ग नेचुरली आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाते. दैट्स वाई आपको वैक्सीन की जरूरत होती है. अब वैक्सीन प्रोड्यूस कैसे होती है? एज आई ऑलरेडी explained you, a vaccine is a small amount of weakened and killed disease causing germs which are either swallowed or injected into the body. वैक्सीन क्या है? किसी पैथोजन, जिस पैथोजन के अगेंस्ट हमको वैक्सीन बनानी है वो कैसे बनती है? किसी पैथोजन के अगेंस्ट हमको वैक्सीन बनानी है तो उसी पैथोजन के किसी पार्ट से, किसी वीक पार्ट से या फिर उसके वीक फॉर्म से, उसके वीक पार्ट से ये वैक्सीन बनती है. और फिर उस वीक पार्ट को आपकी बॉडी में, चाहे वो डायरेक्ट थ्रो माउथ और थ्रो इंजेक्शन, आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. और जैसे ही वैक्सीन से वो पर्टिकुलर वीकेंड पार्ट आपकी बॉडी में, वो जर्म आपकी बॉडी में इंजेक्ट होगा तो आपकी बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करेगी. तो आपकी बॉडी जब उसे फाइट करेगी तो धीरे धीरे उस जर्म्स के अगेंस्ट आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. एंड जब एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इन फ्यूचर वो जर्म कभी भी आपको दोबारा से अटैक करता है तो ये जो एंटीबॉडी आपके बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं ये आपको उस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे. सो दिस इज अ वैक्सीन. ऐसे वैक्सीन प्रोड्यूस होती है. और वैक्सीन क्या होती है यू लर्न अबाउट इट. सो स्टूडेंट, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, keep doing your work. I will continue with next chapter in next video.